के दोनों साइड्स पे आपको स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए, दैट इज़ देयर। बस के पीछे आपके स्कूल का नंबर, प्रेफरेबली द HOD का नंबर होना चाहिए, या फिर जो भी टीचर रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट जिनके अंडर में आ रहा है उनका नंबर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे बस के पीछे क्यों होना चाहिए? सो द रीज़न इज़ कि अगर बाई चांस बस इज स्पीडिंग, सो द ऑन गोअर्स हु आर देयर दे कैन सी दैट नंबर एंड कॉल अप एंड रिपोर्ट कि आपकी बस बहुत ओवरटेक कर रही है, एंड देयर कैन बी एन इंसिडेंट, बिकॉज ऑब्वियसली द प्रिंसिपल विल नॉट नो सिटिंग इन द स्कूल के बाहर क्या हो रहा है, एंड ऑब्वियसली शी और ही कैन नॉट टेक अ कॉल ऑन दैट। बट देन द पर्पस ऑफ दिस टेलीफोन नंबर इज कि कोई भी ऑन गोअर भी हो रहा है जो देख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, ओवर स्पीडिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, बच्चे बाहर झांक रहे कुछ है, तो एक पब्लिक आम जनता ऑल्सो कैन कॉल यू अप एंड इन्फॉर्म यू दैट दिस इज वॉट इज हैपनिंग। Of the fixture and furniture of the bus, the most basic, the doors and the windows. The windows need to have a mesh wire. I am sure मतलब अंडमान में तो जितना हमने देखा हुआ है, most of the systems are mostly in place. जैसे RTE भी अगर आप देखें, the implementation of RTE in Andamans is much better than other states, because मैं as a resource person काफ़ी travel करती हूँ across the length and breadth of the country, and हमने देखा हुआ है स्कूल्स की जो हालत होती है अक्रॉस इंडिया। अगर आप इंटीरियर्स में, जैसे हम आसाम के इंटीरियर्स में गए, झारखंड के गए, बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, द वॉल्स आर सीपिंग, छत पूरी टूटी पड़ी है। उस हिसाब से थैंकफुली अंडमान इज ऑन अ वेरी गुड स्केल where RTE is concerned. The teacher pupil ratios are very good over here, provisions of textbooks are good, but the same thing is also with regards to the transport. The private schools are doing a good job. I see a lot of private school participation today, and they are doing a good job as far as school transportation is concerned, but still we need to be aware कि basic Supreme Court की guidelines है क्या। So the windows have to be fixed with horizontal grills or mesh wire. The door, every school going bus needs to have a door. ऐसे नहीं है कि बस में डोर नहीं है, तो डोर होना चाहिए, and the door should have a lock, ताकि वो अंदर से लॉक किया जाए। All the school buses must be, जैसे SP सर ने बताया था, all the school buses need to have speed control devices, and 40 kilometers per hour से ज़्यादा speeding नहीं होनी चाहिए। There should be a necessary fire extinguisher in the school bus, and let me reiterate, the fire extinguisher should be in a condition to work. ऐसे नहीं है कि हमने लगा के डाल दिया, वो 3 साल बाद तक हमने चेक नहीं किया, so that also has to be there, that it's in a working condition. Next is the manpower, the most important part of the buses flying. The police verification is mandated. जो भी आपका स्टाफ है, जो बस कंडक्टर है and the bus drivers are there, their verification has to be done before the appointment. There must be a qualified attendant in the bus, preferably a female. कंडक्टर के अलावा स्कूल अगर कोशिश करिए कि मे बी आपकी आया या कोई हो, उनको आप जैसे रूटीन ड्यूटीज़ पे लगा दीजिए to be in the buses. If possible, have a teacher who's there at the beginning point and at the ending point. The same teacher need not be there, but अगर कोई वही रूट की 2-3 टीचर्स भी है, तो आप कोशिश करिए कि एक टीचर हमेशा प्रेजेंट रहे, क्योंकि टीचर के रहने से बहुत डिफरेंस आता है। स्पेशली जो मॉलेस्टेशन इंसिडेंसेस आए हैं, उसमें देखा गया है कि द बसेस हैव बीन एम्प्टी, इट्स जस्ट बीन एम्प्टी इन द सेंस ओनली स्टूडेंट and the conductor and the driver, because outside people don't enter the bus and molest a child. It's just generally the people who are within the bus. The provision shall also be made by the school authorities, जैसे मैंने कहा, to have a teacher and while the bus is flying. A medical checkup is very essential to ensure the physical fitness of the driver, including the eye test, which has to be made mandatory every year. Now दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे यू हैव टू इंश्योर एज अ स्कूल कि अगर कोई ड्राइवर है, तो आज अगर XYZ आपके पास लिस्टेड है, उसका सब कुछ वेरिफिकेशन हुआ है, उसका फिजिकल टेस्ट है, बट पता चला बंदा गांव चला गया या कहीं चला गया, मायाबंदर चला गया, और यहाँ पोर्ट ब्लेयर में उसने अपने दोस्त को बिठा दिया, और उस समय आपका इंसिडेंट हो जाएगा, तो एज अ स्कूल हेड यू आर गोना बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी टू एंश्योर दैट the driver is the one which is listed, and the name and the number of the driver and the conductor have to be the same which is there in the school records. ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपना कभी कंडक्टर नहीं आया तो किसी को भी क्लीनर को बिठा दिया, चल बेटा तू बैठ जा, आज माई कंडक्टर इज नॉट देयर. दैट कैन नॉट हैपन. जस्ट
जैसे आपकी टीचर्स होती है, अगर फिजिक्स कोई पढ़ा रहा है तो वही जाके पढ़ाएगा। वो छुट्टी कर लिया तो आप अपने कोई फ्रेंड या रिलेटिव को उस दिन पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं भेज सकते हो, राइट। तो उसी तरीके से वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट द ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स ऑल्सो, एंड दिस इज़ वन वीक एरिया जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं। एज मच एज वी मे नॉट एक्सेप्ट इट, बट द स्टार्क रियलिटी इज दैट दिस इज़ अ ऑनगोइंग प्रॉब्लम, बिकॉज ये वाला जो एरिया है ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स का, अगर उन्होंने छुट्टी कर ली, पता चला ड्राइवर पी के उठ गया सुबह में, सो ही सेंड्स हिज फ्रेंड अक्रॉस कि आज तुम चला लो। बट उस समय अगर उस समय कोई इंसिडेंट हो गया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? विल यू से दैट द ड्राइवर्स फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल who was driving, or whether you as a school authority is responsible? Here is where this is a very important thing. And while I say all this, it's very important for me to say that we are not only putting these guidelines only for the school buses, because most of the time the children who are traveling to schools are also using private transportation like the Omnis or the Boleros and all, which are traveling with multiple children more than their capacity. फैसिलिटीज़ इन द बस के अंदर क्या फैसिलिटी होना चाहिए? बसेस शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स। अगेन, जैसे स्कूल में आप फर्स्ट एड बॉक्स इंश्योर करते हैं कि उसकी जो मेडिसिन है वो एक्सपायर नहीं हुई हो, या उसमें जो आपका ऑइंटमेंट है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं गई हो। सिमिलरली बस में भी आपको चेक करना है कि जिस दिन कोई इंसिडेंट हुआ, आपने डब्बा खोला, डब्बा खाली पड़ा हुआ है, उस टाइम पे कंडक्टर ने आपको कहा कि अरे मैडम मैंने तो रखा था, बट बच्चे लोग खेलते खेलते सब निकाल लिए। सी, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विच हैपेंड। धन्यवाद मैडम, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री आर सेतुकरे, नोडल ऑफिसर एनसीपीसीआर को स्मृति चिन्ह भेंट कर श्रीमती रूबीना सिद्दीकी, रिसोर्स पर्सन एनसीपीसीआर को सम्मानित करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ रिसोर्स पर्सन एएसआई तमिल सेल्वम, ट्रैफिक ब्रांच, अंडमान एंड निकोबार पुलिस को। गुड मॉर्निंग यू ऑल। अब रूबिका मैडम ने सभी पॉइंट्स, सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत बेहतरीन से बताया। मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है। ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से जो लीगल प्रोविज़न है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं जो स्कूल बस ट्रांसपोर्ट करते हैं स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। उसमें सबसे पहला है बस की जो कलर्स होना चाहिए। बस जो है येलो बस में होना चाहिए। जो भी आपके स्कूल के बस बच्चों को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बस की कलर येलो कलर होना चाहिए। उसके बाद में बस के ड्राइवर के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद बस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बस के फिटनेस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, पोल्यूशन होना चाहिए। उसके अलावा बस में लिमिटेड स्टूडेंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस में या व्हीकल्स में मतलब क्राउड हो। उसके बाद फर्स्ट एड के किट्स होना चाहिए। इनकेस कुछ कैजुअलिटी होता है, एक्सीडेंट होता है, बसों में फर्स्ट एड के किट्स होना चाहिए ताकि इमीडिएटली उसके जो भी फर्स्ट एड देने के लिए। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है बस में फायर सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए। जो भी बस चलती है उसमें फायर सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बसेस तो बहुत कम चलती हैं। कुछ स्कूल से वही जो है अपने बस चलाते हैं। कामराज स्कूल है, ब्लेयर स्कूल है, सेंट मेरीज स्कूल है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन खुद पेरेंट्स करते हैं या तो उनके रिलेटिव्स करते हैं। तो आप जो भी पेरेंट्स रिलेटिव्स हैं जब अपने बच्चों को लेकर घर से निकलेंगे, टू व्हीलर में जाएंगे तो प्रॉपर हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट सिर्फ राइडर को नहीं है, पीछे जो पिलियन राइडर है उनको भी हेलमेट पहनना है। हेलमेट पहनने से मतलब नहीं है वो स्ट्रैप को भी फास्टन करना है। उसके साथ फोर व्हीलर्स में भी बच्चों को लेके जाते हैं, चालक और जो को सीटर है उनको भी सीट बेल्ट को फास्टन करना है। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी निकाल दिए, कार निकाल दिए, बिना सीट बेल्ट को लेके जा रहे हैं। अभी रिसेंटली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस मतलब डिस्कस किए हैं, बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। कार में जितने लोग बैठते हैं, पीछे भी जो बैक सीट में बैठते हैं उनको भी सीट बेल्ट वगैरह फास्टन करना है। ये सेफ्टी नज़र से बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो सेफ़ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साउथ अंडमान के सभी मेजर स्कूल्स में ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉयड है। मॉर्निंग सेशंस
और जो आपके स्कूल जो क्लोजर टाइमिंग में आफ्टरनून में, तो जो भी हेल्प से हमारे ट्रैफिक पुलिस आपको देंगे। और उसके अलावा स्कूल को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। काफ़ी स्कूलों में देखा गया है कि प्रॉपर पार्किंग नहीं है, जगह है मगर उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी एम्पैथी है वो भी इसके ऊपर कोई नज़र नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर पार्किंग होना चाहिए ताकि व्हीकल्स बच्चों को लेके प्रॉपर छोड़ के वहाँ से वापस आ सकें। और आप सभी जो बस चालक हो या तो पेरेंट्स जो बच्चों को घर से लेके स्कूल ड्रॉप करते हैं, लेके आते हैं, उनको रोड साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो रोड साइंस में 3 प्रकार की होती हैं, इन्फॉर्मेटरी, मैंडेटरी और कॉशनरी। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स होती है, 3 प्रकार की होती है, आप सब जानते होंगे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। और ये सब का जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप सेफ़ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो ओवर स्पीडिंग है उसको हम चेक करने के लिए हमारे पास स्पीड लेज़र गन्स वगैरह है। और ड्रंकन ड्राइविंग है, उनको हम चेक करने के लिए हमारे पास ब्रीथ एनालाइजर्स वगैरह मशीन वगैरह है। और हमारे पास हॉक स्क्वाड टीम है जो मोटरसाइकिल में बंदे घूमते हैं हर ट्रैफिक इशूज़ को वो चेक करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सअप नंबर है, थर्ड है ये, उसमें भी आपका किसी प्रकार का स्कूल प्रेमिसेस में हो या बाहर हो, ट्रैफिक इशूज़ है, आप उस नंबर में भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या तो फ़ोटो लेके डाल सकते हैं। उसमें प्रॉपर व्हीकल का नंबर, टाइम, प्लेस होना चाहिए। आप नंबर अगर नोट करेंगे तो नोट कर सकते हैं। ट्रैफिक का थर्ड डे का व्हाट्सअप नंबर है 9531892228। आई रिपीट 9531892228। इवन स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अगर कोई भी अगर इशूज़ है ट्रैफिक रिलेटेड, आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम इसको डेली बेसिस में चेक करते हैं, हम प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे। धन्यवाद सर। एएसआई तमिल सेल्वम अंडमान एंड निकोबार पुलिस को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कोऑर्डिनेटर एनसीपीसीआर को। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री बी बिनॉय, डिप्टी डायरेक्टर, रिसोर्स पर्सन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एनसीपीसीआर और उनके टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्कूल बसेस के बारे में इतना गाइडलाइंस के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट कितना सीरियस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना सीरियस है, ये सारा गाइडलाइंस इतना स्ट्रिंजेंट है, देख के स्कूल अथॉरिटी सोच रहे होंगे कि हम लोग स्कूल चलाए या बस चलाए। तो मैं बता दूं कि ये जितना स्ट्रिंजेंट अभी दिख रहा है एक्चुअली उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा सीरियस है। इसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग पूरे सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ही लाइट लेते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन इतना एक चैलेंजिंग टास्क है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स का भी बस में ट्रांसपोर्टेशन या जिस तरीके से भी हो ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अ रियली चैलेंजिंग टास्क। हर दिन कोई ना कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मुझे फ़ोन आता रहता है कि आज यहाँ बस नहीं पहुँचा है, ओवर क्राउडिंग हो गया, डिले हो गया है, या किसी ना किसी वजह से वहाँ डिस्टर्बेंस होता है, बच्चों को पहुँचने में दिक्कत आता है। और हम अभी तक, मैं ऑनेस्टली अगर कहूँ तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी पूरी तरीके से उसमें सफल नहीं हो पाया है कि बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही एफिशिएंट और सेटिस्फैक्ट्री बना पाऊँ। कुछ प्लान्स है, हम लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। अभी ये रोड सेफ्टी का सब्जेक्ट मुझे दिया गया, मैंने प्रेजेंटेशन तो कुछ नहीं बनाया, मैं एक्सटेम्पोरी बात करना चाहूँगा। प्रेजेंटेशन रहता तो कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते थे। एक रोड सेफ्टी का इम्पोर्टेंस ये है कि 2019 में जो रोड एक्सीडेंट फैटलिटीज़ होता था उसमें करीब 1.5 लाख लोग मरते थे। शायद दूसरा अन्य किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा हमारा है, डूबियस डिस्टिंक्शन हमको है। इसी के वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारा
लॉस को भी स्ट्रिंजेंट किया, मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया 2019 में, पीनल प्रोविजंस को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो गवर्नमेंट 4 ईज़ के ऊपर में उसमें काम करता है। 4 ई। पहला है एजुकेशन, सबसे फर्स्ट दिया है एजुकेशन। एजुकेशन, रोड सेफ्टी अवेयरनेस में एजुकेशन लाना, सोसाइटी के हर कोने में जहाँ पर भी किसी भी पायदान पर हो, हर किसी को रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में बताना, एजुकेट करना। सेकंड है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का 2 एस्पेक्ट है, एक रोड इंजीनियरिंग और दूसरा है व्हीकल का इंजीनियरिंग। व्हीकल का इंजीनियरिंग में आए दिन डेवलपमेंट होते जा रहा है, नया नया सेफ्टी फीचर्स आ रहा है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि सीट बेल्ट क्यों लगाना। उनका क्लेम ये रहता है कि मैं तो सीट बेल्ट तो 60 या 70 के स्पीड के बाद ही काम करेगा, इम्पैक्ट होगा, तो मैं अगर 30 या 40 में ही चलाता हूँ तो मैं सीट बेल्ट क्यों पहनूँ। ये गलत सोच है। बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिवाइस किया वाला एक सेफ्टी इक्विपमेंट है सीट बेल्ट। अगर मैं 30 के स्पीड में जा रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ मेरा गाड़ी का कंट्रोल है, सामने से जो गाड़ी आता है उसका एक्सेलेरेटर या उसका स्टीयरिंग कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। उसका स्पीड और मेरे गाड़ी का स्पीड दोनों मिलाकर जब हेड ऑन कोलिजन में आता है तो वो बहुत बड़ा स्पीड बनता है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादातर टाइम फैटल ही होता है। ये फैटलिटीज़ के बताया ना, तब 1.5 करोड़ या अभी जा करके 1.3 करोड़ हुआ, 3 लाख हुआ है। उसमें ये फैटल तो हो गया, जो जिसका डेथ हो गया वो तो चला गया, लेकिन उसके वजह से जो अफेक्टेड है उनका क्या होगा आप सोचिए। ज़्यादातर इसमें डाटा ये भी बताता है कि फैटलिटीज़ में जो मोस्ट अफेक्टेड है वो 18 से 45 ईयर्स एज ग्रुप के लोग हैं, यानी वही ब्रेड अर्नर्स होंगे या अपना लाइफ का प्राइम एज में रहे होंगे, तभी तो उनका इसमें कोई भी एडवेंचरस होगा या कुछ गलती होगा या कोई सामने वाला का गलती की वजह से उनका डेथ हुआ है। तो जो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट है एक एक्सीडेंट या उसका फैटलिटीज़ का, वो बहुत दूर तक जाता है। दूसरा, रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड या इन्वॉल्वमेंट जिसका सबसे ज़्यादा है वो है 2 व्हीलर्स। करीब 43% 2 व्हीलर्स रोड फैटल एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। अब 2 व्हीलर्स, आप सब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हो, टीचर्स हो, तो आपके पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन में आ जाता है। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर कोई टाइम निकाल करके, थोड़ा सा टाइम डेली निकालो या वीकली निकालो, लेकिन रोड सेफ्टी के बारे में ज़रूर बच्चों को थोड़ा सा ज़रूर अवेयरनेस ज़रूर इम्पार्ट कीजिए। उसका बहुत ही फ़ायदा होगा। और बच्चे, ऐसा है ना, अगर छोटा बच्चा भी 3-4 साल का बच्चा भी अगर कार में जाता है, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को टोकेगा, पापा आप सीट बेल्ट नहीं पहना है। तो उस पेरेंट को उससे ज़्यादा इफेक्ट और किसी में नहीं आता है, वो इम्पैक्ट उसको ज़्यादा असर करता है। जब मेरा बेटा या बेटी ही बोल रहा है कि मुझे सीट बेल्ट पहनने के लिए, तो वो और क्या चाहे, पुलिस खड़ा रहे, ट्रांसपोर्ट वाला खड़ा रहे, चालान करे, लाइसेंस सस्पेंड करे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट तभी होगा जब बच्चे खुद समझ जाए कि उसी टाइम में, उसके बाद उसको कल उसी को गाड़ी चलाना है। धन्यवाद सर। श्री बी बिनोय, डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कोऑर्डिनेटर एनसीपीसीआर को। अब मैं श्री जोशी फिलिप, फैकल्टी एसआईई, रिसोर्स पर्सन, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। A very warm good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank NCPCR for having me here. अभी जैसे आपने 3 रिसोर्स पर्सन्स को सुना, खास करके बिनोय सर ने बहुत ही लेंथ एंड ब्रेड्थ में सब कुछ, he has dealt in detail about everything, almost everything that is related to transport safety by schools. So मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि
roles and responsibilities of heads of schools, teachers, SMC members. May I know some SMC members are present here? Kindly raise your hands. No. Then maybe school authorities, heads of schools and teachers, since you have regular interaction with them, you may enlighten them about these issues, because it is also in the purview that they also take care of these things in a better way. So जैसा कि आपको पता है कि बच्चे हमारे सबसे बहुमूल्य एसेट्स हैं, संपदा है किसी राष्ट्र के लिए। तो उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी ये हम सब का जिम्मेदारी है। इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all the stakeholders. It's not only just the onus is not on parents alone. Parents अकेले बच्चों के लिए नहीं है, या 6 घंटे सिर्फ हम स्कूलों में जो है टीचर्स और हेड्स ऑफ स्कूल्स या स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। ये पूरे समाज का एक कलेक्टिव दायित्व है। और इस पूरे उनके 18 साल के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 18 वर्ष के होते होते उनका स्कूलिंग कंप्लीट हो जाता है, वो 12th कर लेते हैं, वो स्कूल से बाहर हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के रेंज में आ जाते हैं। तो इस दौरान जो 18 वर्ष तक जो है बच्चे जब हमारे स्कूलों में आते हैं, मे बी फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, वो अलग अलग एज ग्रुप से होते हैं। तो बेसिकली उनको कैटर करना ये हम सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई होप यू ऑल एग्री विथ मी। सो इन द introduction to my presentation, it's about the NCPCR in collaboration with Department of Education is organizing this workshop, and it is a welcome step because this is a very vital issue. Since children reach to schools, commute to schools and go back to schools using different modes of transport, may it be a private school bus or a private cab, or the parents drop off or they use the public transport. तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। NCPCR ने ये कदम लिया पूरे नेशन वाइड इस विषय पर, इस मुद्दे पर। जैसे विनोय सर ने भी कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर में अवेयरनेस जो है स्टेक होल्डर्स का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस विल एनेबल द स्टेक होल्डर्स टू नो अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी। And as you know that children are the most vulnerable and most important assets in the nation, और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम सब पर है। The objective of the session is to provide relevant information collated from measures for transport safety by schools, like right from the beginning रुबीना मैम ने भी कहा, बिनॉय सर ने भी आपको बताया कि जो अलग अलग गाइडलाइंस विभिन्न स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दी गई है ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के ऊपर में, उन सब को लेकर के कोलेटेड फॉर्म में जो है हमको इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। देन इन्फॉर्म एंड इक्विप द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स इन मॉनिटरिंग द मेजर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सो दैट टू इंश्योर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन while commuting to and from schools. Then highlight the roles and responsibilities of school heads, teachers and SMC members in this matter. Then the first question arises, how children commute to schools. So all of us know that 2-3 जरियों से बच्चे जो है स्कूलों में पहुंचते हैं। जिनका घर बहुत पास में है वो पैदल आते हैं, even then they are using the roads. तो सेफ्टी ऑन द रोड्स इज़ अ कंसर्न। जो ड्राइवर्स जो गाड़ियां चलाते हैं उनको रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़, वो बच्चे जैसे अंडमान की बात कहें तो बैरिंग अ फ्यू प्राइवेट स्कूल्स, majority of the schools depend on the public transport system. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बच्चे आते हैं तो उनका सेफ्टी या सिक्योरिटी वहाँ पे कंसर्न है। थर्डली, पेरेंट्स उनको ड्रॉप ऑफ करते हैं या पिक करते हैं स्कूलों से, तो वो भी ट्रैफिक रूल्स और दूसरे रेगुलेशंस के दायरे में आते हैं। और या तो फिर प्राइवेट कैब्स जो ऑपरेट होते हैं, खास करके पोर्ट ब्लेयर में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे इवन गवर्नमेंट स्कूल्स के भी प्राइवेट कैब्स को यूज़ करते हैं या ऑटोज़ में उनका जो है मंथली बुकिंग रहता है। तो वो सारे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जो वो इस काम में बच्चों की सहायता करते हैं, पेरेंट्स की सहायता करते हैं। देन स्कूल बस इज़ द मोस्ट अनडाउटेडली यू कैन से दैट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
means to transport students from and to schools. उसका फ़ायदा यह है कि एक तो है कि बच्चे स्कूलों में समय से पहुंचते हैं, अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन स्कूल के पास अपना हो तो वो डिलेस बहुत कम होता है। अनटूवर्ड केसेस में जैसे कभी कोई सड़क में हादसा हो गया, कुछ हुआ, तो उसकी वजह से जैम्स या कंजेशंस होने पे हो सकता है कि स्कूल बस भी लेट हो जाए। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट अपना अगर स्कूल मैनेज करता है तो उससे जो पोल्यूशन और एमिशंस जो है वो रिड्यूस होते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक बड़ा सा जो बस है जिसमें मान लीजिए 52 सीट्स हैं, तो वो 52 इंडिविजुअल्स उसमें ट्रैवल करते हैं, अदरवाइज़ वो 52 व्हीकल्स में जाते हैं, तो डेफिनेटली दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल्सो। ये भी एक मुद्दा है। देन थर्ड थिंग इज़ उससे जो है ट्रैफिक जैम्स की इशू भी कम आती है, क्योंकि ज़्यादा व्हीकल सड़क में है तो ट्रैफिक जैम की समस्या हो सकती है। और स्कूल बसेस जो है वो क्योंकि ज़्यादा बच्चों को एक साथ ले जाती है तो ट्रैफिक जैम में भी को रिड्यूस करने में भी उसका हमें सहायता मिल सकता है। देन इंश्योरिंग चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी वाइल कम्यूटिंग। अभी पुलिस विभाग की ओर से बिनॉय सर ने भी और रुबीना मैम ने भी बताया कि बच्चे जब बस में कम्यूट करते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या फिर स्कूल बस में हो, तो बच्चों को फिज़िकल सेफ्टी यानी उनके जो है शारीरिक रूप से उनको प्रोटेक्ट करना, फिज़िकल डैमेजेस ना होना, एक्सीडेंट से बचाना, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स का जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी जो कई तरह के जो वायलेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों को छेड़छाड़ या बुलिंग, ये जो है कई तरह से होते हैं, बस में प्रेजेंट मेंबर्स के द्वारा ही होता है वो जनरली। तो वो सबसे पहला है कि ड्राइवर और कंडक्टर या जो अटेंडेंट है बस में वो। दूसरी बात, इवन द स्टूडेंट्स हु आर ट्रैवलिंग विद देम, उनके जो पीयर्स हैं, जो बच्चे ट्रैवल करते हैं, ये बुलिंग की घटना उनके द्वारा भी हो सकती है। बच्चों को छेड़ना, उनको जो है अनटूवर्ड वे में उनसे जो है बिहेव करना, तो ये सब के लिए हमें सिस्टम्स इन प्लेस रखना चाहिए, जिससे कि फीडबैक के द्वारा बच्चों से बार बार हमें पूछना चाहिए कि उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है नहीं है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। We had a wonderful session. Thank you, Rubina ma'am. Thank you, various dignitaries from Transport and Police Department. I was listening to everything very patiently. बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो हमें शायद मालूम है और हमें जागरूकता भी है उसके बारे में। I would like to share something really special, and it is my humble request to Rubina ma'am, Transport and Police Department, to please listen to it. 1 महीना पहले ही मेरे स्कूल में सुबह असेंबली के पहले एक बच्ची क्लास 8 की रोती हुई आई। उसको चुप कराना बहुत मुश्किल हो रहा था। देन मैं उसको अपनी ऑफिस में ले गई, पानी पिला के सहला के उसको मैंने चुप कराया। हमने प्राइवेट स्कूल्स की बसेस के बारे में बहुत कुछ जाना सुना। मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी ये है कि किसी लड़के ने उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करी थी बस में। सो मैं उसको पुलिस स्टेशन ले गई, वेरिफिकेशन हुआ। अभी मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक पॉइंट पढ़ा कि पेरेंट्स को मोटिवेट कीजिए कि बच्चों के साथ जाए। उसकी मदर को बुलाया गया, वो सिंगल पेरेंट है, वो भी मदर भी आई। मदर भी कोई फर्दर एक्शन नहीं लेना चाहती थी कि मेरी बेटी बदनाम होती है इससे। तो मैंने बहुत समझाया कि बेटी बदनाम नहीं हो रही है, बल्कि बेटी स्ट्रांग है। और स्ट्रांग कैसे थी, वो बच्ची को अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उसको मिसहैंडल करा गया था। एंड इट इज़ वेरी राइट दैट वेदर इट इज़ अ स्टेट ओन्ड बस, वेदर इट्स अ प्राइवेट बस, the conductors and drivers must have a proper uniform with their labels. And वो जो उस दिन बस कंडक्टर नहीं था, किसी और को भेजा था। जैसे अभी हमने सुना कि ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत केस होता है। वो बच्ची बोलती रही उसको हेल्प के लिए, बट उसने भी अनसुना सा कर दिया। एंड वो जो कंडक्टर उस दिन था वो खुद ही 18-19 साल का शैबिली ड्रेस्ड लड़का था। सो मेरे सामने पुलिस ऑफिसर ने उस लड़के को बहुत डांटा। उसके ओनर को भी बुलाया गया कि तुम कहीं से खुद ही कंडक्टर नहीं लग रहे हो, तुमसे कोई बच्चा क्यों हेल्प मांगेगा। सो जो चीज़ मुझे अंडमान, मैंने आज तक कभी भी मुझे बस से ट्रैवल करना ही अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। फिर तब से मैंने भी बस में जाना ही छोड़ दिया। आई लव टू ट्रैवल बाय ऑटोज और आई लव टू वॉक। सो माई रिक्वेस्ट इज दैट
जैसे कि अपने ओनली लेडीज़ बसेस स्टार्ट करी हैं, वाई कांट वी हैव ओनली बसेस फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो क्योंकि अंडमान में 50 to 55% स्टूडेंट बसेस में ही जाते हैं। So it is my humble request if the administration can take into it as transport people can, or Ravina ma'am can help that, we should have at least 2 to 3 buses only for girls who are going to schools. Thank you so much everybody, thanks a lot, thank you so much. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमें टैगोर कॉलेज के ऑडिटोरियम के अंदर, और हम आपको बता दें आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप ऑन सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन बाय स्कूल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। और हम आपको ये भी बता दें कि उनकी तरफ से जो है रुबीना सिद्दीक मैम आज हमारे साथ है, और हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे आज जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में शॉर्ट में हम इनसे जानते हैं। बताइए मैम। नमस्कार। NCPCR ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया था। एक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस वर्कशॉप थी, ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दी जाती है स्कूल के बच्चों के लिए, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है, उसके बारे में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए वर्कशॉप की गई थी। इसीलिए एक कन्वर्जेंस मोड में हमने स्कूल अथॉरिटीज़ को, SMC मेंबर्स, पर्सनल फ्रॉम द ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड पर्सनल फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हमने पार्टिसिपेंट्स बुलाया था। वी हैड स्पीकर्स फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स हु स्पोक अबाउट देयर रोल इन इंश्योरिंग सेफ्टी फॉर आवर स्कूल चिल्ड्रन। जैसे कि एक सेशन हमने लिया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस पे, उसके बाद ट्रैफिक ने लिया एक सेशन जिसमें उन्होंने अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करे साउथ अंडमान के वाइल दे आर हैंडलिंग द ट्रैफिक सिचुएशन। फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी द डिप्टी डायरेक्टर स्पोक अबाउट रोड सेफ्टी कि क्या जो प्रैक्टिकली क्या नियम है और कैसे ट्रैफिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी संपर्क कर सकते हैं, वो सब भी उन्होंने बताया। एंड एट द एंड वी हैड अ सेशन बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने बात की कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है प्रिंसिपल्स और टीचर्स की टुवर्ड्स इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन विथ रिगार्ड्स टू ट्रांसपोर्ट। तो मैम एक शॉर्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मैम, हमारे द्वीपवासियों के लिए आप कुछ एक मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि जैसा यहाँ पर हम आए तो बच्चों के साथ मतलब प्राइवेट बसेस में और जो कुछ भी दुष्कर्म होता है, मतलब जो लोग करते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो इसके बारे में एक शॉर्ट मैसेज आप दीजिए मैम। देखिए, बच्चों के साथ होने वाले उत्पीड़न सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं होते हैं, बट जनरली अगर बच्चे बैठे हैं उनकी सेफ्टी के बारे में अगर हमें नहीं मालूम, अगर एक बस बहुत स्पीड कर रही है, इट्स गोइंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड, रैश ड्राइविंग हो रही है, या ड्राइवर कंडक्टर अगर ड्रंकन स्टेट में है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एज़ पीपल, एज़ रेगुलर जनता हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोविजंस क्या है लॉ में। हमें एक बेसिक जानकारी अगर होगी तो हम ये चीज़ रोक सकते हैं। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमारे सेशन में हमने बताया कि स्कूल बसेस के ऊपर ऑन ड्यूटी स्कूल बस एंड स्कूल का नाम लिखे जाने के अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीछे में जो एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, मे बी एक स्कूल प्रिंसिपल का या कोई भी टीचर इंचार्ज का। अगर आप एज अ रास्ता चलते इंसान अगर आपने देखा कि एक बस बहुत स्पीड में जा रही है, तो आप वो नंबर पे कांटेक्ट करके उनको ये कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ इट हम कितने जागरूक हैं ये चीज़ों के बारे में, अगर हम जागरूक हैं तो हम वो चीज़ के ऊपर बैरिकेडिंग कर सकते हैं। मैंने आपसे ये सवाल मैम इसलिए पूछा क्योंकि कुछ देर पहले एक मैम यहाँ पर आई थी, उन्होंने बताया कि उनके क्लास के बच्चे के साथ जो घटना हुई थी, तो उसी को लेकर हमने आपसे ये सवाल पूछा था मैम। हाँ जी, जो घटना यहाँ पे बताई गई कि किसी ने बदतमीज़ी की एक गर्ल स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गाइडलाइन इज़ कि जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको कोई चालान हुआ है नहीं, या उनका कोई एंटीसीडेंट्स में प्रॉब्लम है। अगर ये हमें पता रहेगा तो फिर इट्स वेरी इजी टू पुट अ स्टॉप टू दिस। और साथ ही में एक टीचर ट्रैवल करनी चाहिए बस के अंदर। हमेशा एक स्कूल से कोई पर्सनल, अगर टीचर नहीं हो तो कोई मे बी प्यून या कोई उनकी ऐसी ड्यूटी लगनी चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर होना चाहिए जो ये रूस्टर चला सके, ताकि हर वक्त स्कूल का कोई एक बंदा अगर बस में रहे तो ऑब्वियसली किसी की हिम्मत नहीं हो सकती ऐसे काम करने। एक बस में लेडी कंडक्टर होना मैम, ये चीज़ ज़रूरी है कि नहीं, आप ये बताइए, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है मैम। हाँ जी,
नहीं, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ही। और इनफैक्ट जो सजेशन आया कि विच इज़ अ वेरी वेलकम सजेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया था कि हो सके दो चार बसेस स्पेसिफिकली स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाए, एंड लेडीज़ कंडक्टर एंड लेडीज़ ड्राइवर, आई थिंक नोबडी इज़ मोर सेंसिटिव दैन विमेन। तो अगर फीमेल कंडक्टर्स या ड्राइवर्स भी अगर हो तो आई थिंक डेफिनेटली सिचुएशन में सुधार हो ही सकता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और जो भी यहाँ पर हुआ हमें संक्षेप में बताने के लिए। तो इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।